کیا ہم نے کبھی سوچا ہے اگر یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، کیا ہم ویسے ہی گزاریں گے جیسے پچھلے رمضان گزار دیے؟ سوشل میڈیا، نیند، غفلت اور دنیا کی مصروفیات میں؟ یا پھر اس رمضان کو ہم اپنی نجات، اپنی مغفرت اور اپنی تقدیر بدلنے کا ذریعہ بنائیں گے؟ رمضان المبارک صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کو سجا دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ خود ہمیں موقع دیتا ہے کہ آؤ میری طرف لوٹ آؤ، میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن سوال یہ ہے، ہم رمضان کیسے گزارتے ہیں؟ کیا ہمارا رمضان صرف سحری، افطاری اور کھانوں تک محدود ہو کر رہ گیا ہے؟ کیا ہم نے رمضان کو عبادت کے بجائے رسم بنا لیا ہے؟ دن روزے میں گزرتا ہے مگر زبان جھوٹ بولتی ہے، آنکھیں گناہ دیکھتی ہیں، کان حرام سنتے ہیں اور دل دنیا میں لگا رہتا ہے۔ تو ایسا روزہ صرف بھوک اور پیاس کے سوا کیا دے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں ان کے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ رمضان المبارک کو صحیح انداز میں گزارنے کے لیے سب سے پہلا اور بنیادی کام نیت کی درستگی ہے، کیونکہ ہر عمل کی قبولیت کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ اگر نیت خالص ہو تو تھوڑا عمل بھی بڑا بن جاتا ہے، اور اگر نیت میں کھوٹ ہو تو بڑا عمل بھی وزن نہیں رکھتا۔ اس لیے رمضان شروع ہونے سے پہلے ہمیں اپنے دل کے اندر جھانکنا ہوگا، اپنے باطن کو ٹٹولنا ہوگا اور خود سے سوال کرنا ہوگا کہ ہم یہ رمضان کیوں گزار رہے ہیں؟ کیا صرف رسم کے طور پر یا واقعی اللہ تعالیٰ کی رضا اور مغفرت کے لیے؟ جب بندہ سچی نیت کے ساتھ رمضان میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت اور آسانی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اسی نیت کی درستگی کے ساتھ دوسرا اہم قدم یہ ہے کہ رمضان آنے سے پہلے اپنے دل کو صاف کیا جائے۔ دل اگر کینہ، حسد، بغض اور نفرت سے بھرا ہوا ہو تو رحمت اس میں جگہ نہیں بناتی۔ اس لیے دیکھیں، اگر آپ کسی سے ناراض ہیں تو دل بڑا کریں اور اسے معاف کر دیں۔ اگر کسی کا حق دبایا ہے تو واپس لوٹا دیں، کیونکہ حقوق العباد کی معافی بندوں سے ہی ملتی ہے۔ اگر آپ کے کسی لفظ، کسی رویے یا کسی عمل سے کسی کا دل دکھا ہے تو جھک کر معافی مانگ لیں۔ یاد رکھیں، معاف کرنا کمزوری نہیں بلکہ روح کی طاقت ہے، اور جو دل دوسروں کے لیے نرم ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے فیصلے نرم فرما دیتا ہے۔ رمضان سے پہلے دل کی صفائی دراصل رحمت کو دعوت دینا ہے، کیونکہ کینہ رکھنے والا دل اندھیرا رکھتا ہے اور رمضان نور بانٹنے آتا ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے دوسرا مرحلہ، نماز کی پابندی۔ رمضان ہمیں صرف بھوکا پیاسا رہنے نہیں سکھاتا بلکہ اللہ کے قریب ہونا سکھاتا ہے، اور اللہ سے قرب کا سب سے مضبوط ذریعہ نماز ہے۔ 5 وقت کی نماز وہ بنیاد ہے جس پر پورے رمضان کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اگر بنیاد مضبوط ہو تو عمارت بھی مضبوط رہتی ہے، اور اگر بنیاد ہی کمزور ہو تو باقی اعمال بھی کمزور پڑ جاتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں سوچنا چاہیے، جو شخص رمضان جیسے بابرکت مہینے میں بھی نماز کا پابند نہ بن سکا، وہ پھر کب بنے گا؟ آخر دل اس مہینے میں بھی نہ پگھلا تو پھر کب پگھلے گا؟ اس لیے کوشش کریں کہ جیسے ہی اذان کی آواز سنیں تو فوراً لبیک کہیں۔ دنیا کے کام بعد میں بھی ہو سکتے ہیں مگر اللہ کی پکار کا جواب فوراً دینا چاہیے۔ نماز کو بوجھ نہ سمجھیں، اسے ملاقات سمجھیں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندہ زمین پر کھڑا ہوتا ہے مگر بات آسمانوں کے رب سے کر رہا ہوتا ہے۔ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو وہ زمین کے سب سے نچلے مقام پر ہوتا ہے مگر روح کے اعتبار سے اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ اسی سجدے میں مانگی گئی دعائیں تقدیریں بدل دیتی ہیں۔ اسی قیام میں بہائے گئے آنسو گناہوں کو دھو دیتے ہیں۔ جب رمضان میں نماز سنور جاتی ہے تو زندگی سنورنے لگتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے، روح کو روشنی ملتی ہے، اور بندہ واقعی محسوس کرتا ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہو رہا ہے۔ یہی رمضان کا اصل مقصد ہے، بندے کو بندگی کا سچا ذائقہ چکھانا۔ رمضان المبارک کو صحیح طریقے سے گزارنے کا تیسرا اور نہایت اہم پہلو قرآن سے تعلق جوڑنا ہے، کیونکہ رمضان صرف روزوں کا مہینہ نہیں بلکہ قرآن کا مہینہ ہے۔ یہی وہ بابرکت زمانہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت کے لیے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔
गोया रमज़ान और कुरान का रिश्ता ऐसा है जैसे रूह और जिस्म का ताल्लुक, एक के बगैर दूसरा अधूरा महसूस होता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब रमज़ान आता है तो हम घरों को सजा लेते हैं, दस्तरखान सजा लेते हैं, मगर कुरान को सिर्फ ताक और शेल्फ पर सजा कर रख देते हैं। पढ़ते नहीं, समझते नहीं, उसके पैगाम को अपनी ज़िंदगी में उतारते नहीं। हमें चाहिए कि रमज़ान में कुरान से अपना टूटा हुआ ताल्लुक दोबारा जोड़ें, रोज़ाना बाकायदा कुरान मुकर्रर करें, चाहे मसरूफियत कितनी ही क्यों ना हो। अगर पूरा पारा नहीं पढ़ सकते तो एक रुकू पढ़ लें, एक सफ़ा पढ़ लें या चंद आयात ही पढ़ लें, मगर पाबंदी के साथ पढ़ें और सिर्फ तिलावत पर इक्तिफा ना करें बल्कि समझकर पढ़ने की कोशिश करें। क्योंकि कुरान सिर्फ सवाब समेटने की किताब नहीं, ये हिदायत की किताब है, ये ज़िंदगी बदलने की किताब है, ये दिलों को ज़िंदा करने वाली किताब है। जब बंदा रमज़ान में कुरान से जुड़ जाता है तो उसके अंदर नूर पैदा होता है, सोच बदलती है, तरजीहात बदलती हैं और उसे महसूस होता है कि अल्लाह ताला उससे कलाम कर रहा है। इसके बाद रमज़ान का चौथा अहम पहलू आता है, दुआ और गिरिया उजारी। रमज़ान वो महीना है जिसमें बंदे और रब के दरमियान फासले कम कर दिए जाते हैं। अल्लाह खुद फरमाता है, मैं करीब हूँ, पुकारने वाले की पुकार सुनता हूँ। गोया ये ऐलान है कि ए बंदे, तू मांग, मैं देने के लिए तैयार हूँ, तू रो, मैं सुनने के लिए करीब हूँ। रमज़ान में कुछ लम्हात ऐसे होते हैं जो कबूलियत दुआ के ख़ास औकात होते हैं। अफ्तारी से पहले के वो लम्हे जब रोज़ादार भूखा प्यासा होता है मगर उम्मीद से भरा होता है, ये दुआओं की कबूलियत का वक्त होता है। फिर रात की तन्हाई में तहज्जुद का वक्त, जब सारी दुनिया सो रही होती है और बंदा अपने रब के सामने खड़ा होता है। ये वो लम्हा होता है जब अल्लाह अपने बंदे पर ख़ास नज़र करम फरमाता है। और फिर शब कदर की बाबरकत रातें, वो अजीम साआतें जिनमें तकदीरें लिखी जाती हैं, फैसले होते हैं और बख्शिश की परवाने जारी होते हैं। इन लम्हात को ज़ाया ना करें, अल्लाह से मांगे, खूब मांगे, दिल खोल कर मांगे, अपनी मग़फ़िरत मांगे, हिदायत मांगे, रिज़्क़ हलाल मांगे, दिल की नरमी मांगे, ईमान की मजबूती मांगे और सबसे बढ़कर अपना ख़ात्मा ईमान पर मांगे। क्योंकि कामयाबी का असल मयार यही है कि इंसान दुनिया से ईमान के साथ रुखसत हो। फिर रमज़ान का पांचवा और निहायत ज़रूरी पहलू है गुनाहों से बचना। अक्सर हम ये समझ लेते हैं कि रोज़ा सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम है, हालांकि हकीकत इससे कहीं ज़्यादा गहरी है। रोज़ा दरअसल मुकम्मल कंट्रोल का नाम है। ये सिर्फ पेट का रोज़ा नहीं बल्कि आँख का रोज़ा, ज़ुबान का रोज़ा, कान का रोज़ा और दिल का रोज़ा भी है। अगर रोज़ा रख कर भी हम झूठ बोलते रहे, गीबत करते रहे, गालियाँ देते रहे, लोगों को तकलीफ़ पहुँचाते रहे, हराम देखते और सुनते रहे, तो फिर हमने रोज़े की रूह को मजरूह कर दिया। ऐसा रोज़ा जिस्म को तो भूखा रखता है मगर रूह को पाक नहीं करता। इसीलिए हमें रमज़ान में अपने ज़ाहिर के साथ साथ अपने बातिन की भी हिफाजत करनी है। रमज़ान दरअसल एक तरबियती महीना है। ये हमें नफ्स पर काबू पाना सिखाता है, ख्वाहिशात को कंट्रोल करना सिखाता है, सब्र, बर्दाश्त और तकवा सिखाता है। जब बंदा पूरा महीना अपने नफ्स को काबू में रखने की मशक करता है तो रमज़ान के बाद भी उसके अंदर गुनाहों से बचने की ताकत पैदा हो जाती है। रमज़ानुल मुबारक को बामकसद और बाबरकत बनाने का छठा अहम पहलू सदका और खैरात है। रमज़ान दरअसल हमदर्दी, गमख्वारी और एहसास का महीना है। जब एक साहिब इस्तिताअत इंसान खुद दिन भर भूखा और प्यासा रहता है तो उसे पहली बार एहसास होता है कि गुर्बत क्या होती है, भूख क्या होती है और वो लोग कैसे जीते हैं जिनके घरों में रोज़ अफ्तारी के दस्तरखान नहीं सजता। यही एहसास रमज़ान का असल सबक है कि बंदा सिर्फ अपनी फ़िक्र में ना रहे बल्कि दूसरों के दर्द को भी महसूस करे। इसीलिए हमें चाहिए कि रमज़ान में दिल खोल कर सदका करें, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक रोज़ेदारों को अफ्तारी करवाएं, किसी मुस्तहिक घराने तक राशन पहुँचाएं, यतीम बच्चों के सरों पर शफ़क़त का हाथ रखें, बेवाओं और मिस्कीनों की खामोश मदद करें। याद रखें, कभी कभी आपकी थोड़ी सी मदद किसी के घर की सबसे बड़ी खुशी बन जाती है। और ये भी जहन में रखें कि जिसने किसी रोज़ेदार को अफ्तार करवाया, इसे रोज़ेदार के बराबर अजर मिलता है, बग़ैर इसके अजर में कमी के। सोचें, ये अल्लाह की कितनी बड़ी रहमत है कि वो हमें दूसरों को खिलाकर कुछ सवाब कमाने का मौका देता है। इसके बाद रमज़ान का सातवां और निहायत अजीम पहलू आता है,
शब कदर की तलाश। रमज़ान की आखिरी 10 रातें आम रातें नहीं होती, ये ख़ास रातें होती हैं, रहमत से भरी रातें, फैसलों की रातें। इन्हीं रातों में एक ऐसी रात छुपी होती है जो 1000 महीनों से बेहतर है, यानी तकरीबन 83 साल से भी ज़्यादा इबादत का अजर सिर्फ एक रात में मिल सकता है। ज़रा सोचें, अगर एक बंदा पूरी ज़िंदगी इबादत ना कर सके मगर उसे शब कदर नसीब हो जाए और वो इखलास के साथ इबादत कर ले, तो वो सदियों की इबादत का सवाब समेट सकता है। उससे बड़ा नफ़ा का सौदा और क्या हो सकता है। इसीलिए आखिरी अशरे की रातों को गफलत में ना गुजारें। इन रातों में क़याम करें, नमाज़ें पढ़ें, कुरान की तिलावत करें, कसरत से इस्तिग़फ़ार करें, तन्हाई में बैठकर अपने रब से राज़ो नियाज़ करें और दिल की गहराई से वो दुआ करें जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई। ऐ अल्लाह, तू माफ़ करने वाला है, माफ़ करने को पसंद करता है, मुझे भी माफ़ फरमा दे। ये वो अल्फाज हैं जो गुनाहों के पहाड़ को भी रेज़ा रेज़ा कर सकते हैं अगर दिल सच्चा हो और आँख नम हो। और फिर आती है आखिरी और सबसे अहम बात, रमज़ान सिर्फ गुजारने के लिए नहीं आता, बदलने के लिए आता है। अगर रमज़ान आया और चला गया और हमारी ज़िंदगी वैसी की वैसी रही तो ये सबसे बड़ी महरूमी है। रमज़ान की कबूलियत की निशानी ये नहीं कि हमने कितने रोज़े रखे, बल्कि ये है कि रमज़ान के बाद हम कितने बदल गए। अगर रमज़ान के बाद भी नमाज कायम हो जाए, कुरान से ताल्लुक़ मजबूत हो जाए, गुनाहों से नफ़रत पैदा हो जाए, दिल नरम हो जाए, आँख जल्दी नम हो जाए और बंदा अल्लाह को पहले से ज़्यादा याद करने लगे, तो समझ लें कि रमज़ान कबूल हो गया और अल्लाह ने हमें खाली हाथ नहीं लौटाया। लेकिन अगर रमज़ान रुखसत हो जाए और हम फिर उसी गफलत, उसी लापरवाही और उसी गुनाहों वाली ज़िंदगी में लौट जाए तो ये बहुत बड़ी महरूमी है, क्योंकि हमने रहमतों के मौसम को ज़ाया कर दिया। अभी इसी वक्त दिलों को झुका लें, आँखों को नम कर लें और अपने रब से दुआ करें, या अल्लाह, हमें रमज़ान की हकीकी कदर करने की तौफीक अता फरमा। हमें सच्चा रोज़ेदार बना, सिर्फ भूखा नहीं बल्कि मुत्तकी बना। हमें कुरान से मोहब्बत अता फरमा, हमें कुरान वाला बना। हमें नमाज का पाबंद बना, हमें सजदों का आदी बना। हमें शब कदर नसीब फरमा और उसमें हमारी मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह, जब रमज़ान रुखसत हो तो हमें बख्शा हुआ लिख दे, हमारे नाम जहन्नुम से आज़ाद होने वालों में लिख दे और हमारा ख़ात्मा ईमान पर फरमा। आमीन सुम आमीन।